Now, what is a relative strength index? Relative strength, there are some buyers, there are some sellers. Buyers are trying to buy, sellers are trying to sell on a particular price. Now, what is the strength in the stock price movement as per the demand by buyer and seller is calculated or is shown in relative strength index. How it is calculated, what formula being used, we will not go into detail. We will be using how to apply RSI index, how to apply RSI index for buying and selling decisions. Now, it is just like how car brake works, what is the mechanism behind that. We will not go into that. We will go if we need to apply brake where we have to put our feet and brake will be applied. How the mechanism behind that, which energy is converted into what energy, we will not go into detail of that. We will become the driver, not the engineer for the car. Okay. So relative strength index, I'm going to share my screen with all of you and I will show how to apply RSI in the stock. I'm using a website called as tradingview.com. It is again a free website. You can go on this tradingview.com, log in with your Google, need not to put your name or mobile number for your identity point of view. Only whatever the login Google account you have in your laptop, you can log in with that and then go on trading. Suppose I'm using the here called as Nestle. Now, if I write here Nestle, you can see on my screen, they are giving some discount to me. I will not take this discount or this offer at present. And you also need not to pay anything for them. So now I will see ensure two, three, four things. First thing is here, it should be year. It should be year. It should not be a day. It should not be 5 day, 1 month, 6 month, 5 year. It should not be like that. It should be year. Second thing here, it should be day. Day. We are using the day candle. And third thing, it should be candle, not area, line or something. It should be candle. For me, since I am using this website, am I audible, Jyoti ma'am? Yes, sir. Yes, Yes. sir. Okay, so since I'm using this website for a long period, so my settings are already done, but you have to ensure three settings. It should be day, candle, and then it should be year. You have to see these things before starting the your calculation. Now go on indicators. Go on indicators. Here you can find indicators. On indicators, you will see you have to write RSI. If you put RSI in the indicators, you will see the first thing. This is RSI. You click it and you will get it RSI. Now what will happen? Now see this. See this. I think there is some problem with the connectivity. Let me check it. Okay. Now, if you see, I have applied RSI. Now there is another chart before. This RSI goes from 0 to 100. I am repeating, RSI range is 0 to 100. If RSI is 0, that means there is no seller for the stock. If RSI range is 0, that means there is no seller for the stock. If RSI range is 100, that means there is no buyer for the stock. RSI 0 means no seller. RSI 100 means no buyer. But that is only hypothetical situation. RSI generally never becomes 0 nor become 100. It is just like perfect competition, which you are being taught in your class economics. Though there is perfect competition, but it is hypothetical situation that does not exist. Generally, RSI ranges from 30 to 70. I'm repeating, RSI ranges
from 30 to 70. What does it mean? It means that if RSI is 30, if RSI is 30, means the people who are selling the stock, they have exhausted after selling. They have exhausted after selling. The people who were selling the stock, they have exhausted in selling. Now, means they are not ready to sell now. They are not ready. I'm not saying that they will not be selling, but they are not ready to sell at that price. They have exhausted. RSI zero means they will not sell at all. So that does not exist. I already told you. But 30 or 25 or maybe 28 means whenever RSI goes below 30, that means seller have exhausted. And if RSI goes above 70, that means buyers have exhausted. That means buyers have exhausted. Now, you have to tell me if sellers have exhausted, their stock will go up or down. Anyone can tell me if sellers have exhausted. Now, sellers are not ready to sell. Now, stock will go up or down. Anyone? So down. Up, not down. If there is no one to sell, how stock will go down? If sellers have exhausted, means people are not ready to sell. So there will be only buyers. And you must have studied somewhere in economics demand and supply. If demand is more, supply is less, prices will go up. Prices will go up. So if sellers have exhausted, that means price will go up. If buyers have exhausted, price will go down. So now if you see this Nestle RSI is around 20 25. At this point of time, it is 39. If you see, it is 39. A few days back on 29th October, it was 21. Now, 21 was the situation when sellers have almost exhausted. Now, buyers are there, but sellers are less. That means the probability that from here stock will go up. So, whenever you find a stock in range of this 30, 25, that means that shows that there is chances that stock can go up. I'm using the terminology can go up. I'm not saying will go up because in stock market we can do only predictions on the past of on the basis of past data. Now, if I see another stock HD, suppose you can write anywhere, you can put the cursor anywhere, then write, then new stock will come. Suppose if I see HDFC Bank. Now, in this situation, the RSI is approx 70, approx 70, 66 point something, it is approx 70. Now, in this situation, now buyers are exhausting. Now it is going, it is up. Now buyers have exhausted. Now there are less buyers, more sellers. Now the chances from here is that stock can go down. So whenever you see RSI and RSI is around 70, try not to buy the stock, or if you have, you want to sell, you can sell the stock. And if see this here when RSI was the price was 1300 and the RSI was somewhere around 25. That means if this situation was then when buyers are ready to buy but sellers have exhausted, and if somebody have bought this stock, prices has gone up. Now you have to see the same situation here. It happened, it has gone up. Now when it was 70, see this 73, 77. Now the exhaust, who has exhausted? Buyers have exhausted. Now the chances was to down. So if you see RSI, you can predict. If I see Hindustan Unilever, I can see now in this situation, RSI is approx 30. That means 30 means buy sellers have exhausted. Now the chances that stock can go up. So whenever you find a stock around 30 RSI, you can enter. And whenever you find a stock around 70 RSI, this was the range when 70 RSI. See this. This was the range 70. So you should have predicted the stock could go down, could go down. And if somebody have predicted on time,
that this loss from 2900 to 2300 could have been saved. Could have been saved. So this is the way people use RSI for their trading. Is it okay? Is it fine? शुड आई मूव टू अनदर इंडिकेटर? आप लोग को समझ में आ गया कि आरएसआई क्या होता है, आरएसआई को कैसे यूज करते हैं। मैं फिर बता रहा हूं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप 30 पे खरीदेंगे और 70 बेचेंगे तो हमेशा प्रॉफिट होगा। मैं कह रहा हूं जनरली ऐसा होता है। अगर आप 100 बार ये चीज करेंगे, सपोज आपके पास 1 लाख रुपए है और आप 5-5 हजार रुपए का 20 स्टॉक खरीदते हैं जिसकी आरएसआई 30 थी, फिर उसमें से कुछ को बेचते हैं, फिर पैसे आते हैं, फिर खरीदते हैं, फिर बेचते हैं, ऐसे अगर आप 100 डिसीजन लेते हैं तो 92 चांसेस आपको प्रॉफिट के हैं। 10-5 उसमें भी लॉस हो सकता है, लेकिन नट सेल में आप प्रॉफिट में रहेंगे। इस तरह ऐसा स्टॉक मार्केट में ऐसा कोई रूल नहीं है जिसमें हर बार आप प्रॉफिट में रहेंगे। हर बार आपने वो रूल अपना लिया था एकदम प्रॉफिट में ही रहेंगे, ऐसा कोई रूल आज तक नहीं बना है, ना बन सकता है, ना बन सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अब देखो जैसे यहाँ पे स्टॉक 70 पे था, यहाँ पे स्टॉक 70 पे था, लोग किसी ने बेचा, थोड़ा नीचे आया, फिर 70 गया, किसी ने बेचा, अब बेचा 70 हो गया, उसने सोचा नीचे आएगा, लेकिन ये यहीं से ऊपर चला गया, नीचे तो नहीं आया यहाँ से। तो ऐसा नहीं है कि आप बेचोगे 70 पे तो 30 पे आ ही जाएगा, और आप 30 पे खरीदोगे तो 70 पे चला ही जाएगा, लेकिन जनरली ऐसा होता है। इसीलिए हम इसको प्रोबेबिलिटी थ्योरीज कहते हैं। आप इस डिसीजन को हर बार स्टॉक खरीदोगे बेचोगे, खरीदोगे बेचोगे, तो आप प्रॉफिट में रहोगे। आपका स्टॉक प्रॉफिट में गया लॉस में गया उससे मतलब नहीं, आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में रहेगा। यू विल बी जनरेटिंग वेल्थ। जैसे एक आलू वाला होता है, वो आलू खरीदने मंडी जाता है, आलू खरीद के लाता है, शाम को बेचता है। 10 रुपए किलो आलू खरीद के लाता है, कुछ आलू को वो 15 रुपए किलो बेचता है, फिर थोड़ा शाम होती है तो 12 रुपए किलो बेचता है, कुछ आलू को वो 8 रुपए किलो भी बेचता है। अब अगर वो सोचेगा मैं 8 रुपए किलो बेच रहा हूँ मुझे तो लॉस हो रहा है, नहीं। अल्टीमेटली टोटल आलू उसने खरीद कितने में खरीदा था और अल्टीमेटली टोटल आलू कितने में बिके हैं उसको देखोगे तो आप प्रॉफिट में रहोगे। स्टॉक खरीदते समय लोग यही गलती करते हैं कि वो हर एक स्टॉक का हर एक डिसीजन, हर एक बाइंग को सोचते हैं कि वो अपने सेलिंग जो है उससे हायर प्राइस पे करें। ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती है, ये आप कभी नहीं कर पाओगे। आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया, अगर आपको आरएसआई समझ में आ गया, आप आरएसआई को यूज करो। आप 100 बार बाइंग सेलिंग करते रहो, आपको 90 बार प्रॉफिट होगा, 10 बार लॉस होगा। 10 का प्रॉफिट 10 का लॉस, या हो सकता है 80 बार प्रॉफिट होगा, 20 बार लॉस होगा, 20 का लॉस 20 के प्रॉफिट से कंपनसेट हो जाएगा, तब भी आप 60 बार ट्रांजेक्शन आपका प्रॉफिट में, नेट सेल प्रॉफिट में रहेगा। दिस इज द वे यू जनरेट वेल्थ इन स्टॉक मार्केट, नॉट बाय बाइंग द शेयर एंड एवरी शेयर इन द प्रॉफिट। क्या ये क्लियर है? ज्योति में मेरी वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है क्या? सर स्क्रीन तो क्लियरली शो रही है, बट आप मतलब आप नहीं विजिबल हो, बाकी सब सही है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मेरे वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, चलिए कोई बात नहीं। क्या मैं आगे बढ़ूं? सर ये ग्रोथ है, मतलब ये इंडिकेटर जो है, क्या है ये? ग्रोथ ग्रोथ इन्वेस्टर्स जो हाँ, हैं ये वो ज्यादा। ट्रेडिंग, ये इंडिकेटर सारे ट्रेडिंग के लिए होते हैं। जो ट्रेडर्स होते हैं वो 2 महीने 4 महीने के लिए एंट्री करते हैं, फिर एग्जिट करते हैं, फिर एंट्री करते हैं, फिर एग्जिट करते हैं, उनके लिए है, नॉट फॉर द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करते हैं? अगर सपोज मेरे को 2 4 5 सालों का इन्वेस्ट करना है तो मैं आरएसआई लगाऊंगा 5 साल के स्टॉक में। अब मैं 5 साल के देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर जब मैं 1 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा था तो ये मेरे को बाइंग जोन में दिख रहा था, दिख रहा था ना आपको नीचे। लेकिन अगर मैं इसी को 5 साल के, तो अब मुझे दिख रहा है कि नहीं, हो सकता है थोड़ा सा और नीचे आ सकता है, क्योंकि अभी ये 30 पे, अभी ये 37 30 40 के आसपास है। तो अगर मैं लंबे समय का इन्वेस्टर हूँ, मुझे और लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है, 10 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो भी मैं आरएसआई यूज करता हूँ। अब देखिए मैंने ऑल टाइम का आरएसआई लगा दिया। अब ऑल टाइम का आरएसआई के हिसाब से ये 50 पे है, तो मैं इसमें एंट्री तब करूंगा जबकि ये 20 25 30 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो और अगर कोई ऐसा होता है जो बहुत 10 दिन 20 दिन के लिए करता है तो हो सकता है वो 3 महीने का भी लगा दे, हो सकता है वो 1 महीने का भी। तो जितना आपका टाइम होराइजन है उसके हिसाब से आप इस आरएसआई को यूज करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप चार्ट लगाएं 1 महीने का और डिसीजन ले 10 साल के लिए।
ये नहीं हो सकता। आपको अपना टाइम होराइजन को मैच करना होता है आपके ट्रेडिंग डिसीजन के। ठीक है बच्चा लोग, सर आप लोग को सब। इंडेक्स का ये फॉर्मूला होता होगा कुछ? हाँ जी। इंडेक्स, ये जो RSI हम हाँ, आर एस इंडेक्स। आई का √44 वो करके उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, उसकी जरूरत नहीं है प्लीज उसमें। आप वैसे आपको चाहिए, आपको मन है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन टास्क वो जैसे कोई जैसे कोरिलेशन निकालते हैं। अब कोरिलेशन 1 का क्या मतलब होता है, कोरिलेशन -1 का क्या मतलब होता है, ये मैं समझा रहा हूँ। कोरिलेशन निकालने का फॉर्मूला अगर मैं बताऊंगा तो बच्चों को कंफ्यूजन ही होगी। अब ये फॉर्मूला, ये बताइए इसको जान के क्या करेंगे। ये है आपके, जस्ट ये, टास्क। हाँ, हाँ ये आपके ठीक। पास स्क्रीन पे है कि आपको लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है कि अब वो एवरेज। अब इसमें क्या होता है कि हाँ, जो पिछले कुछ जैसे यहाँ पे 21 डेज, 44 डेज, जितने भी दिन का आपको लेना है, उतने दिन का एवरेज गेन, कितने दिनों में गेन हुआ, कितने दिनों में लॉस हुआ, फिर उसको डिवाइड करके फिर ये करके निकाला जाता है। उसमें बच्चों का कोई फायदा नहीं है उसको निकालने का। ठीक है। इसको स्किप करते हैं हम, हाँ। ठीक है। क्या बच्चा लोग क्लियर है, क्या मैं आगे बढ़ूँ? Yes, sir. Okay. यस सर। Now, now I will be using one more indicator for you people, that is stochastic. Now, STO ये भी एकदम RSI जैसा है, लेकिन ये थोड़ा शॉर्टर पीरियड के लिए होता है। देखो, स्टोकेस्टिक, स्टोकेस्टिक, स्टोकेस्टिक को जब मैं यूज करूंगा, ये भी एकदम RSI जैसा है। इसको यूज भी RSI जैसे करते हैं। इसका भी सेम मतलब है कि अगर जीरो के आसपास गया, जीरो पहुंच गया तो इसका मतलब कोई सेलर नहीं है, 100 पहुंच गया तो कोई बायर नहीं है। लेकिन 0 100 केवल हाइपोथेटिकल चीजें होती है, वहां पे ये जाते नहीं है। अल्टीमेटली जो ये ट्रेवल करते हैं, ये ट्रेवल करते हैं फ्रॉम 20 to 80। स्टोकेस्टिक ट्रेवल करता है फ्रॉम 20 to 80। ठीक है, 20 to 80 का इसका रेंज होता है। नाउ, अगर आप 20 पे आ गया तो आपका बाइंग जोन होता है, और 80 पे आ गया तो आपका सेलिंग जोन होता है। मैं स्टॉकेस्टिक में थोड़ा सा चेंज बताऊंगा आपको। यहाँ देखो, जब आप स्टॉकेस्टिक लगाओगे तो यहाँ पे जाना, ये आपको स्क्रीन दिख रही होगी, स्क्रीन को ध्यान से देखो। यहाँ पे जाके सेटिंग पे जाके इसको जो है 21 5 और 5 कर देना। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर अब मुझसे आप नहीं पूछेंगे कि ये के स्मूथिंग, डी स्मूथिंग क्या होता है, इस सबके डिटेल में नहीं जाएंगे आप। ये कार की इंजीनियरिंग है, हम कार की ड्राइविंग सीख रहे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं आज। आज हम कार को ड्राइव करना, अगर हम 18 साल के हो गए, कार कैसे चलाएं हम ये सीख रहे हैं। हो सकता है कल को आप बीटेक में एडमिशन लें तो कार कैसे काम करती है वो भी सीखें, वो बात की बातें होती हैं। तो अभी आपने इसको के स्मूथिंग 21 कर दिया, के लेंथ को, के स्मूथिंग को 5 और डी स्मूथिंग को 5, और इसको मैंने अप्लाई कर दिया। नाउ अब आपको स्क्रीन पे दिखेगा, देखो, जब ये ऊपर है यानी 80 के आसपास है, मैंने बेचा होता। फिर ये, जब ये 20 के आसपास गया मैंने बाई किया होता। फिर इसको अगर मैं यूज करूं, इसको मैं अगर यूज करूं तो मैं बहुत आराम से अपने प्रॉफिट और लॉस को मैनेज कर सकता हूं। जैसे इस समय अगर मैं इस स्टॉक को देखूं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये 20 के आसपास आ चुका है, आ रहा है, ये एक बाइंग जोन है। अगर मैं यहीं पे रिलायंस को देखूं, ये सब मैं केवल एग्जांपल बता रहा हूं, कोई टिप्स नहीं है कि आप कल खरीदने लगे, मेरा काम पढ़ाना है। अब ये भी एक बाइंग जोन में आया हुआ स्टॉक है, ये एंट्री का पॉइंट है। अगर मैं HDFC बैंक को देखूं तो अभी ये, अब ये सेलिंग जोन के आसपास जा रहा है। बाइंग जोन के आसपास यहाँ था, इट वॉज इन बाइंग जोन, हमारा बाई करने का टाइम था। अगर हमने इसको यहाँ खरीदा होता तभी हम कुछ प्रॉफिट में, ये जब ऊपर जाएगा तब इसको बेच सकते हैं। अगर मैं यहीं पे नेस्ले को देखूं तो क्या ये बाइंग जोन में है कि सेलिंग जोन में है, तो मुझे दिखाई देता है कि ये बाइंग जोन में आ रहा है, इट इज एट द बाइंग लेवल। अगर मैं यहीं पे मारुति को देखूं, दीज आर द एग्जाम्पल्स आई एम टेकिंग टू हेल्प यू पीपल। अब ये बाइंग जोन में आ चुका है, और जब ये सेलिंग जोन में था तो आप इसको बेच देते, बाइंग जोन में खरीद देते। इस तरह से लोग बाइंग जोन, सेलिंग जोन को यूज करके बाई और सेल करते हैं। देखने में बहुत इजी लगता है, अप्लाई करना आसान नहीं होता, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। इट इज जस्ट लाइक, जैसे आपको एक डॉक्टर बता सर, देता है, डॉक्टर बताता है कि आप मॉर्निंग वॉक करेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे।
बड़ा इजी लगता है। हाँ मॉर्निंग वॉक करेंगे हेल्दी रहेंगे, लेकिन मॉर्निंग वॉक कोई कर नहीं पाता। इंडिया में 2% लोग भी मॉर्निंग वॉक नहीं करते। तो सेम वे आपको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ जब भी ये ऊपर जाएगा मैं बेच दूंगा, जब भी नीचे आएगा मैं खरीद लूंगा, लेकिन लोग कर नहीं पाते हैं। क्योंकि जब बैंक अकाउंट में पैसे होते हैं तो आपको खरीदने की जल्दीबाजी होती है, और जब आपके पास शेयर होता है तो आपको बेचने की जल्दीबाजी होती है। वो फियर एंड ग्रीड आपको तंग करता रहता है और इंसान कर नहीं पाता। तो आई होप कैसे आप स्टोकेस्टिक को यूज करेंगे, स्टोकेस्टिक का जो रेंज है 2155 को यूज करेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। ज्योति में कोई बच्चा बीच में कुछ बोल रहा था शायद। यस सर। बोलिए बेटा। सर जब ये स्टॉक वो सेलिंग जोन में होता है तो स्टॉक का प्राइस कम हो जाता है। बेटा देखो, ये स्टॉक अभी मैंने कहा यहाँ पे ये देखो 80 के आसपास था। यस सर। अभी अभी ये सेलिंग जोन में था, अगर आप बेच देते तो फिर ये नीचे, अब ये यहाँ आ गया, बताओ यहाँ से ऊपर से नीचे कम हुआ कि नहीं हुआ? फिर ये बाइंग जोन में यस सर। बाइंग जोन में कम मिलेगा आपको, आप खरीदेंगे। सेलिंग जोन में ज्यादा मिलेगा, आप बेचेंगे, तभी तो प्रॉफिट होगा ना। यस सर। ठीक है। कोई और स्टॉक अगर आप अपनी मर्जी से बताना चाहते हैं तो कोई भी नाम लो, मैं उसमें दिखा दूंगा आपको। कोई भी स्टॉक हो सकता है कि आपके मन में ऐसा आए कि हाँ जी ये तो मैंने देखे हुए थे। आपके मन में कोई स्टॉक है, कोई स्टॉक पूछना चाहते हैं? बोलो। सर सर अडानी पावर। अब देखो अडानी पावर लो, आपने पूछा अडानी पावर। आज के टाइम पे ये बाइंग जोन में है। अगर आपको पता होगा कुछ दिन पहले कुछ न्यूज आई थी, स्टॉक गिर गया था बहुत तेजी से, लोगों को लगा। सर इनका अरेस्ट वारंट आ गया था। ठीक है। अब ये, लेकिन अभी फिलहाल ये बाइंग जोन में आ चुका है। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कल जाके आप खरीद लेना। ये कुछ टूल्स हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि कल आप खरीद लेंगे तो ये ऊपर ही जाएगा। ये टूल्स है। अगर आप स्टॉकेस्टिक को यूज करके 100 डिसीजंस लेंगे, मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, 100 डिसीजन लेंगे कि 100 बार कोई नए स्टॉक खरीदेंगे बेचेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे, तो उसमें से 10 12 15 गलत होंगे, बाकी 80 सही होंगे। जो लॉस होगा गलत वालों में वो 80 में से उतने में कॉम्पनसेट होगा, और बचा हुआ केवल आपको प्रॉफिट होगा। ये नहीं कि कल जाके आपने अदानी पावर खरीदा तो अदानी पावर सेम डायरेक्शन में वर्क करेगा, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। हाँ, इट मीन्स वी हैव टू कंसीडर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट द कंपनी ऑल्सो, है हाँ, ना? अ मतलब लॉट ऑफ थिंग, अ लॉट ऑफ थिंग। हाँ। ठीक। हाँ जी, किसी को स्टोकेस्टिक और आरएसआई में कोई डाउट है? क्या मैं आगे बढ़ूं? सर। हाँ बोलो। सर ये स्टॉक स्टिक शॉर्ट पीरियड के लिए होता शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, 2 4 महीनों के लिए होता है ये। है। ओके सर। ठीक है ना। अब लास्ट चीज जो मुझे बतानी है अपनी तरफ से, जिसके बाद मेरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों का काम है। अब फिर मैं बता रहा हूँ, कल अगर जब आप 2 तारीख को स्टॉकेस्टिक बताओगे अपने स्टॉक में, तो आपको इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेके हेडिंग डालेंगे स्टॉकेस्टिक और स्क्रीनशॉट लगाएंगे, और बहुत कुछ लिखना नहीं होता, आपको बोलना होता है। ये नहीं कि आप पूरी लाइन लिख दो, पूरी लाइन फिर रीड करने लगो। ये as per stochastic, whenever stock is around 20 25, it is a buying zone. Whenever stock is at 80 85, it is a selling zone. We can see that our stock is at 20, so it is a buying zone for our stock. काम खत्म। इस तरह से आपको बताना है, आपको अपनी प्रेजेंटेशंस बनानी है। सेम आरएसआई पे बता सकते हो, सेम डीएमए को बता सकते हो, डीएमए क्या कह रहा है, वैल्यू इन्वेस्टर के लिए क्या कह रहा है, ग्रोथ इन्वेस्टर के लिए क्या कह रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए क्या कह रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए क्या कह रहा है। इफ वी आर यूजिंग 50 डीएमए आवर स्टॉक इज सेइंग समथिंग, इफ आई एम यूजिंग 200 डीएमए आवर स्टॉक इज सेइंग समथिंग। तो वो चीजें आपको, आप एज एन एनालिस्ट आप अपने रिकमेंडेशन दे रहे हो कि क्या स्टॉक कह रहा है। बाई करेगा सेल करेगा ये काम आपका नहीं है, न मेरा है। हम एजुकेटर हैं, हमारा काम केवल बताना है कि ये थेरीज कैसे काम करती है। ठीक है, आगे बढ़े बच्चा लोग। नाउ आई हैव रिमूव, नाउ आई एम यूजिंग द कंसेप्ट कॉर्ड। सपोज मैंने फिर अपने नेसरे पे चला गया और मैंने ये नेसरे का स्टॉक लगा दिया, और मैं आपको यूज कर रहा हूं 1 साल का स्क्रीन। देखो जरा ध्यान से, जब मैं 1 साल के स्क्रीन को यूज कर रहा हूं नेस्ले को पास, अब देखो क्या होता है। ध्यान से देखना इस बात को। मैं थोड़ा सा इसको स्क्यूज कर ले रहा हूँ सो दैट कि आपको देखने में आसानी रहेगी। ये देखो,
ऐसा रेंज, ध्यान से सुनना, ऐसा रेंज जहां पे बार बार स्टॉक ऊपर जाके रुक जाए और फिर वहीं से नीचे आ जाए, उसको हम कहते हैं रेसिस्टेंस। जैसे आज के टाइम पे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो नेस्ले का 2787 पे बहुत तगड़ा रेसिस्टेंस है। देखो, एक बार यहां तक गया था, फिर वापस आ गया, फिर यहां पे जाने की कोशिश किया, फिर वहीं से वापस आ गया। तो ऐसा रेंज जहां पे स्टॉक बार बार ऊपर की तरफ जाए और रुक जाए। इससे पहले नेस्ले का रेसिस्टेंस यहां पे था, देखो जरा, यहां पे ऊपर गया, नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। इस रेसिस्टेंस को इसने यहां पे तोड़ के फिर ऊपर चला गया। तो ऐसा कोई भी रेंज जहां पे स्टॉक बार बार ऊपर की तरफ जाए और फिर वहीं से वापस आ जाए, उसे रेसिस्टेंस कहते हैं। जैसे इससे पहले यहां पे रेसिस्टेंस था, देखो यहां से ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आया, देखो ध्यान से मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां से स्टॉक ऊपर गया, इस पॉइंट पे जाके, लेट मी शो यू, इस पॉइंट पे जाके ये नीचे आ गया, फिर यहाँ ऊपर गया और फिर नीचे आ गया। यानी ये जो पॉइंट है 2054, वो एक टाइम पे रेसिस्टेंस था, एक टाइम पे ये भी रेसिस्टेंस। और जितनी ज्यादा बार ऐसा हो उसी पॉइंट से वापस आए, उसे उतना बड़ा रेसिस्टेंस कहते हैं, उसे उतना बड़ा रेसिस्टेंस कहते हैं। अगर मैं मान लो कोई भी स्टॉक मारुति ले लेता हूं, कि मारुति का रेजिस्टेंस कहाँ पर है, तो अगर आप देखोगे मारुति बार बार इस रेंज के आसपास, ये जो रेंज है, इस रेंज के आसपास जाके वापस कई बार आया हुआ है, कई बार। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि यहाँ देखो, यहाँ से ऊपर गया, नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर इसी पॉइंट से, फिर ऊपर गया, फिर इसी पॉइंट से, यहाँ पे भी लगभग गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया था, फिर अभी भी ये इसी पॉइंट से नीचे आया हुआ है। यानी ये जो पॉइंट है 12,900 के आसपास, ये मारुति का बहुत तगड़ा रेसिस्टेंस है। एक टाइम पे मारुति का एक ले लिया मैंने ना। रेसिस्टेंस। अभी चलाऊंगा इसको। तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम्हें ध्यान क्यों नहीं दिया? मैं ध्यान नहीं दिया। प्रणीत, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। बात हो रहा है, कौन ध्यान देगा? नाउ, एक टाइम पे आपका रेसिस्टेंस यहाँ पे हुआ करता था, मारुति का एक टाइम पे रेसिस्टेंस यहाँ पे हुआ करता था। यहाँ पे देखिए, यहाँ ऊपर गया, नीचे आ गया, फिर इसी पॉइंट पे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इसी पॉइंट पे ऊपर गया था, फिर ये नीचे आया था, फिर इस रेसिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चला गया। तो जब स्टॉक बार बार किसी पॉइंट पे जाके ऊपर जाने से रुक जाता है, उसे हम रेसिस्टेंस कहते हैं। यानी आज अगर मैं मारुति में एंट्री लूंगा, अगर मैं आज मारुति में एंट्री लूंगा, तो मुझे पता है कि मारुति यहाँ से यहाँ तक तो जा सकता है, लेकिन यहाँ से ऊपर जाना आसान नहीं होगा। हो सकता है यहाँ से वापस आ जाए, इससे ऊपर आसानी से ये नहीं जाएगा। ये एक रेसिस्टेंस पॉइंट है जिसके ऊपर स्टॉक आसानी से नहीं जाता। क्या ये बात क्लियर? रेसिस्टेंस क्या होता है और किसी भी स्टॉक में रेसिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो आप? आगे बढ़ो। मतलब इस पर्टिकुलर प्राइस से वो ऊपर नहीं जा रहा। हाँ, बार बार वो जाके रुक जा रहा है। तो हमारा अब जैसे सपोर्ट को अब देखते हैं, यहाँ देखिए, अगर मैं देखूं, यहाँ पे नेस्ले का एक बहुत अच्छा सपोर्ट था। सपोर्ट का मतलब बार बार उस पॉइंट तक नीचे आता था और फिर वहीं से ऊपर चला जाता था। देखिए, ये ऊपर था, इस पॉइंट पे आया, फिर यहीं से ऊपर गया, फिर आया, फिर यहीं से ऊपर गया, फिर आया, एक बार नीचे तोड़ा, फिर गया, यहाँ पे आया, फिर यहीं पॉइंट से गया। इस इस पॉइंट के नीचे आना बड़ा मुश्किल होता है, और अगर एक बार नीचे आ गया तो हम कहते हैं सपोर्ट को उसने तोड़ दिया। तो ये जो पॉइंट है 2409, ये नेस्ले का बहुत अच्छा सपोर्ट था। अब अगर आज के डेट पे कोई मुझसे पूछे कि नेस्ले का अब क्या सपोर्ट है, क्योंकि ये सपोर्ट तो टूट गया, अब सपोर्ट है नेस्ले का यहाँ कहीं, यहाँ कहीं। अगर आप देखोगे कैसे मैंने निकाला, मैंने देखा कि नेस्ले इसी पॉइंट पे पास्ट में, ये देखिए, यहाँ से इस पॉइंट पे आके रुका था, फिर ऊपर गया, फिर इसी पॉइंट पे रुका था, फिर ऊपर गया, फिर इसी पॉइंट पे रुका था, और फिर ये ऊपर जाके फिर इसी पॉइंट पे रुका है, इसी पॉइंट पे रुका है, और फिर यहाँ से ऊपर गया है। तो अब जो सपोर्ट है वो नेस्ले का कुछ 2180 के आसपास है। तो सपोर्ट
एक तरह से कैसे होता है, जैसे आप पहाड़ी से गिर रहे हैं, पहाड़ी से गिर रहे हैं तो एक सपोर्ट पकड़ा आपने और नीचे नहीं पकड़ गया, वो सपोर्ट पे रुक गया तो ठीक है, नहीं गया तो और नीचे गए। कोई जो जो पॉइंट आपको संभलने का मिलता है उन्हें हम सपोर्ट कहते हैं। सपोर्ट का तरीका होता है कि आप फाइन करें कि बार बार किस पॉइंट पे जाके आपका स्टॉक रुक जाता है, उसे कहते हैं सपोर्ट नीचे जाते समय। और अगर ऊपर जाते समय ऐसा होता है तो उसे कहते हैं रेसिस्टेंस। ठीक है, तो आपको अपने स्टॉक में जो भी आपको, सपोज मेरे को मान लीजिए मिल जाता है, किसी बच्चे ने भी कहा था अदानी पावर। अब अदानी पावर अगर नीचे जा रहा था तो मैं देखूंगा कि अदानी पावर में कहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट है। तो मुझे पता चला कि हाँ जी, अदानी पावर का जो सपोर्ट है वो बहुत अच्छा सपोर्ट जो है वो कुछ इस पॉइंट से थोड़ा सा इसी पॉइंट के आसपास था। कैसे पता चला? ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये स्टॉक यहाँ से गया था, सॉरी ये मैंने गलत टूल यूज कर दिया। देखिए जरा, मैं दोबारा इसको पहले सपोर्ट लगाता हूँ। देखिए जरा ध्यान से, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, उससे ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। तो ये देखिए, ये ऊपर गया था इसी पॉइंट पे नीचे आया था, फिर ऊपर गया था इसी पॉइंट के आसपास नीचे आया था, फिर ऊपर गया इसी पॉइंट के यहाँ से फिर ये ऊपर है। तो ये एक पॉइंट है जो सपोर्ट का पॉइंट है। और अगर ये सपोर्ट टूट के नीचे आ जाता है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट अब मुझे मिलेगा इस पे, वो कुछ यहाँ कहीं जाके मुझे मिल सकता है, जहाँ मुझे, क्योंकि और कोई सपोर्ट मुझे यहाँ दिख नहीं रहा, यहाँ कहीं जाके मिल सकता है कि बहुत ज़्यादा तगड़ा। उसके बाद फिर नेक्स्ट सपोर्ट कहीं यहाँ मिल सकता है। इस पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये स्टॉक यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, इसी पॉइंट पे नीचे आके फिर यहाँ से ऊपर गया था, एक बार ये तोड़ा था ड्यू टू वॉट एवर द रीजन, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर इसी पॉइंट पे नीचे आया था, फिर ऊपर गया। तो ये एक नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है कि अगर ये स्टॉक यहाँ नीचे आएगा तो यहाँ से टर्न होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए इस तरह से हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस ढूंढते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, ये कहीं रूल नहीं है कि इसी पॉइंट से टर्न होगा। चांसेस जब पास्ट में ऐसा हुआ होता है, जितनी ज्यादा बार पास्ट में हुआ होगा, जितनी ज्यादा बार पास्ट में हुआ होगा उतना ज्यादा चांसेस होंगे। अगर एक पॉइंट पे, जैसे ये स्टॉक को देखो, ये अगर आपका रिलायंस है, रिलायंस का ये बहुत तगड़ा रेसिस्टेंस था, बहुत तगड़ा रेसिस्टेंस था। यानी देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, तो यहां से ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम। जितना अब हो गया ऊपर तो अब ये यहाँ पे आ रहा है, फिर इसी पॉइंट पे इससे अब ऊपर जाना चांसेस कम है, आसानी से यहाँ से ऊपर जाएगा नहीं, अगर जाएगा तो फिर आगे कोई। तो ये जो रेसिस्टेंस है, और उसी तरह से आपको सपोर्ट डिसाइड होता है कि किस पॉइंट से वो बार बार नीचे से वो ऊपर की तरफ आ जाता है, उसके नीचे नहीं जाता है, उस पॉइंट को कहते हैं सपोर्ट। तो ये जो नीचे वाली लाइन आपको दिख रही है ये सपोर्ट लाइन है, और जो ऊपर वाली लाइन दिख रही है ये आपकी रेसिस्टेंस लाइन है। इस तरह से आपको भी अपने सर स्टॉक, तो जब भी कोई बोलिए, सर तो बोलिए। जब भी कोई अगर कंपनी मतलब अपना सपोर्ट तोड़ दे रही है तो मतलब वो सही टाइम होता है स्टॉक खरीदने के नहीं, लिए, जब एक तरह से सपोर्ट देखा तोड़ जाए दे तो। रही होती है तो आपको नेक्स्ट सपोर्ट तक वेट करना होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई कंपनी अपने स्टॉक सपोर्ट को तोड़ दे रही है तो आपको पता है अब तो अब तो सपोर्ट गई, अब तो नीचे जाएगी। तो कहाँ नेक्स्ट सपोर्ट है, उस सपोर्ट तक वेट करिए, जब उस सपोर्ट के आसपास जाएगा तो सही टाइम होता है खरीदने का। ठीक है। और अगर कोई कंपनी अपने रेसिस्टेंस के आसपास है तो वहां हमें नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि पता है कि इसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम हैं, आसानी से इसके ऊपर नहीं जाएगा, हो सकता है ये यहाँ से रिटर्न हो जाए। तो जब वो रेसिस्टेंस से ऊपर निकल जाए तभी आपको मानना चाहिए कि हाँ अब जा सकता है ऊपर, क्योंकि अब रेसिस्टेंस के ऊपर जा चुका है तो अब इसको ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कोई क्रिकेट में एक बैट्समैन खेलने आता है तो दो चार रन कभी बना रहा होता है तो हम नहीं कहते, लेकिन जैसे ही वो 40-50 हो जाता है तो अब हम कहते हैं हाँ अब लग रहा है टिक गया है, अब ये बना लेगा सेंचुरी, अब ये इंडिया को जिता देगा। समझ में आ रही बात? उस तरह से हम यहाँ इसको यूज करते हैं। तो अगर कोई सपोर्ट तोड़े तो हमें वेट करना होता है नेक्स्ट सपोर्ट तक का, कि स्टॉक नेक्स्ट सपोर्ट पे जाए, उसके आसपास जाए तो हम एंट्री करेंगे। और रेसिस्टेंस के आसपास है तो हमें वेट करना होता है, या तो हम रेसिस्टेंस के आसपास एग्जिट कर जाएं अगर हम ट्रेडर हैं शॉर्ट टर्म के,
तो हम एग्जिट कर जाएं, या अगर हमें एंट्री लेनी है तो हम वेट करेंगे कि ये रेसिस्टेंस लेवल पार करे, ऊपर जाए, उसके बाद हम एंट्री लेंगे। ठीक है ज्योति मैम, क्या ये तीनों कंसेप्ट बच्चों को समझ में आ जाएगा? यस सर। अलंकृत, आर यू क्लियर अबाउट यू आस्क दिस क्वेश्चन? नो, आ जाएगा सर वैसे। अच्छा पॉइंट है, अच्छी इंडिकेटर्स हैं ये। तो मैंने नहीं, ये मैं बहुत कहते हैं ना, जो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आसान है, जो कोई भी बच्चा यूज कर सकता है, देख सकता है, मैंने वही पढ़ाए हैं। मैं डिटेल में नहीं गया हूँ। मैं हेड एंड शोल्डर, कप विद हेड, कप विद हैंडल, वो सारे डिटेल्स पे नहीं गया हूँ। बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें होती है जो हम अपने रेगुलर क्लासेस में, जो लोग हमें ज्वाइन करते हैं उसमें कराते हैं, जो हमारे शेयर मार्केटिंग कोर्सेज ज्वाइन करते हैं उनको हम कराते हैं। क्योंकि ये बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, इनके लिए क्या जरूरी है, कैसे ये कर सकते हैं, वो हमने कराने की कोशिश किया है। ठीक है। नहीं तो आपने बहुत अच्छे से कराया है और बहुत लेमैन वाली लैंग्वेज में कराया है। सो आई एम रियली हैप्पी द वे यू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स। तो मुझे लगता है कि बच्चों को आए होंगे, और जहाँ रिकॉल की नीड होगी वहां आप रिकॉर्डिंग शेयर करोगे ही। तो आपके उसमें कोई कमी नहीं थी सर। हाँ। अब ये एक्सप्लेनेशन है, मतलब करा मैं ना आपने। आपके साथ एक दो पीपीटी भी शेयर करूंगा। जैसे अभी मैं दूसरे स्कूल में था तो वहाँ के बच्चों ने कैसे बनाई थी, तो एक दो पीपीटी मैं शेयर करूंगा, आप बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, सो दैट कि बच्चों को थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, उस पीपीटी को कॉपी नहीं करना है, एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, ये इतनी चीज़ें हम डाल सकते हैं। थोड़ा सा कंपनी के बारे में डाल दिया, थोड़ा सा कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में डाल दिया, थोड़ा सा कंपनी के फाइनेंशियल डाल दिया, फिर कंपनी का ग्रोथ। अब जैसे कंपनी का ग्रोथ दिखाना है, अब सेल्स दिखाना है, हम 10 साल के सेल्स, या तो हम वही स्क्रीनर का स्क्रीनशॉट लेके दिखा दें, या हम कोई बार डायग्राम बना दें कि हाँ देखो बार कैसे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो वो बच्चों की अपनी क्रिएटिविटी है, जितना वो कर सकते हैं। आप सपोर्ट रेसिस्टेंस है, वो शो करके उसको स्क्रीनशॉट ले दें, उसको दिखा दें। तो बच्चों की अपनी अपनी क्रिएटिविटी है, जो बच्चा जैसे करना चाहे, लेट देम डू। फिर देखते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे, मैं मान के चल रहा हूँ। हाँ नहीं सर, इन्होंने लिया है स्क्रीनर का स्क्रीनशॉट भी लगाया है। मतलब मैंने इनको यही कहा